Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 7, Miss Didi's Task of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topic was apostrophe S. So students, included this topic, we have read about apostrophe S and we have also read and solved exercise O, answer this question, and also exercise C, fill in the blanks with the words given in brackets of the chapter 7 in our Far English Language notebook in our last video. And students, today's our topic is my house and my neighborhood. So students, included this topic, we will read about house and neighborhood, and we will also read and solve exercise A, which is page number 33, and also exercise B, which is page number 34 in our English language book Cornerstone. And last, we will read and solve exercise A, answer the following questions of the chapter 7 in our Far English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please pay special attention in class and listen to my words clearly, because today we are going to read about house and neighborhood. Okay, so all students, please look at this page number 33. Let's see. Students, our topic is my house and my neighborhood. So firstly, I am going to explain this topic. Okay, my means मेरा, house means घर, and means और, my means मेरा, neighborhood it's mean होता है पड़ोस. Okay, my house and my neighborhood it's mean मेरा घर और मेरा पड़ोस. Okay, so students, we live in house. Okay, हम house में रहते हैं, घर में रहते हैं. Okay, तो students जहाँ हम रहते हैं ना, उसे हम house बोलते हैं, घर बोलते हैं, और हमारे house के surrounded के एरिया को हम नाइबरहुड बोलते हैं. ओके, हमारे घर के चारों ओर की जो एरिया होती है, जो क्षेत्र होता है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं नाइबरहुड. इट्स मीन पड़ोस. ओके, हमारे हाउस के आसपास भी हाउस होते हैं. ओके, वो घर होते हैं. ओके, तो जो हमारे हाउस के आसपास जो हाउस होते हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नाइबर्स. ओके, इट्स मीन पड़ोसी. क्लियर? और हमारे हाउस के सराउंडेड जो एरिया होती है, उसे हम बोलते हैं नाइबरहुड. इट्स मीन पड़ोस. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज माय हाउस एंड माय नेबरहुड. इट्स मीन मेरा घर और मेरा पड़ोस. ओके, सो नाउ we are going to read about house and neighborhood. Okay, so students, let's exercise A. Students, your exercise is, look at this picture of a house. Can you answer the questions below? The words in the box will help you. Okay, look at means देखिए, this means यह, picture means चित्र या तस्वीर, of means का, a means एक, house means घर. Look at this picture of a house. It's mean एक घर की इस चित्र को देखिए. कैन यू आंसर इट मीन क्या आप आंसर दे सकते हैं. द क्वेश्चंस इट मीन प्रश्नों, बिलो मीन्स नीचे. ओके, कैन यू आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट्स मीन क्या आप नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं. द वर्ड्स इन द बॉक्स विल हेल्प यू. द वर्ड्स मीन शब्द इन द बॉक्स इट्स मीन बॉक्स में, विल हेल्प यू इट्स मीन आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे. ओके, द वर्ड्स इन द बॉक्स विल हेल्प यू इट्स मीन बॉक्स में दिए हुए शब्द आपकी मदद करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज इज, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ हाउस. कैन यू आंसर द क्वेश्चंस बिलो. द वर्ड्स इन द बॉक्स विल हेल्प यू इट्स मीन एक घर के इस चित्र को देखिए, क्या आप नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं. बॉक्स में दिए हुए शब्द आपकी मदद करेंगे. क्लियर? स्टूडेंट, लेट्स सी, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ हाउस एंड वी कैन सी दैट इन दिस हाउस here's a bedroom and a bathroom and a kitchen and a living room. Okay, so student, let's see, it's your help box and in this help box your helping words are bedroom. bedroom means होता है students शयन कक्ष. Okay, जहाँ पे हम सोते हैं. Okay, and students, your second number हेल्पिंग वर्ड इज लिविंग रूम. इट्स मीन होता है बैठक कमरा या बैठक कक्ष बोल सकते. ओके, स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर वर्ड इज बाथरूम. इट्स मीन बाथरूम. एंड स्टूडेंट्स, योर लास्ट वर्ड इज किचन. किचन मीन्स स्टूडेंट्स होता है रसोई घर. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज वेयर डू वी कुक. ओके, वेयर मीन्स कहाँ. डू इट्स योर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन परफॉर्म. वी मीन्स हम, कुक मीन्स पकाते. वेयर डू वी कुक इट्स मीन हम कहाँ पकाते हैं. और वी कैन टू से आल्सो दैट हम खाना कहाँ पकाते हैं. ओके, द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि हम खाना कहाँ पकाते. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कुक इन किचन. ओके, हम किचन में पकाते, हम खाना किचन में पकाते. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट नंबर आंसर इज किचन. ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन हियर किचन, KITCHEN, किचन इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक. ओके, एंड स्टूडेंट, किचन मीन्स होता है रसोई घर. ओके, वी कुक इन किचन. ओके, इट्स मीन कि हम खाना किचन में पकाते हैं, हम खाना रसोई घर में पकाते हैं. क्लियर? स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, और सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हेन पीपल विजिट अस, कॉमा वेयर डू दे सिट. ओके, व्हेन मीन्स जब, पीपल मीन्स लोग, विजिट अस इट्स मीन हमारे यहाँ घूमने आते हैं. ओके, व्हेन पीपल विजिट अस इट मीन जब लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं. ओके, जब हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आता है. ओके, वेयर डू दे सिट इट्स मीन तो वे कहाँ बैठते. ओके, सिट मीन्स होता है बैठना. वेयर मीन्स कहाँ, डू दे सिट इट्स मीन वे बैठते. ओके, वेयर डू दे सिट इट्स मीन वे कहाँ बैठते. ओके, स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हेन पीपल विजिट अस, वेयर डू दे सिट इट्स मीन कि जब लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो वे कहाँ बैठते. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो वो कहाँ बैठता है. सो स्टूडेंट्स,
when people visit us they sit in living room. Okay, it's mean कि जब लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं ना तो वे लिविंग रूम में बैठते हैं. ओके, बैठक कक्ष में बैठते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर आंसर इज लिविंग रूम. सो ऑल स्टूडेंट राइट डाउन हियर लिविंग रूम, LIVING लिविंग, RMM रूम इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक. ओके, लिविंग रूम इट्स मीन बैठक कक्ष. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज वेयर डू वी स्लीप. ओके, वेयर मीन्स कहाँ. Do it's a present indefinite tense helping verb in pro form. We means हम so sleep means सोते. Okay, where do we sleep? It's mean हम कहाँ सोते. Okay, so students we sleep in bedroom. Okay, हम bedroom में सोते. Okay, so students your third number answer is bedroom. Okay, so students write down here bedroom in the third number blank. BED bed ROOM room. Bedroom it means शयन कक्ष. Okay, so students we live in we sleep in bedroom. Okay, इट्स मीन कि हम शयन कक्ष में सोते, हम बेडरूम में सोते. क्लियर स्टूडेंट, लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ए. स्टूडेंट्स, ऑफ फोर नंबर क्वेश्चन इज वेयर डू यू टेक अ बाथ. इट्स मीन कि आप कहाँ पर नहाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स वी टेक अ बाथ इन बाथरूम. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑफ फोर नंबर आंसर इज बाथरूम. ओके, हम बाथरूम में नहाते हैं. ओके, बाथरूम में स्नान करते हैं. तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर बाथरूम इन दिस फोर नंबर ब्लैंक. ओके, BATHROOM bathroom. Clear? So students, we have read and solved this exercise A. Okay, and in this exercise A, your answers are, your first number answer is kitchen, it's mean rasoi ghar. Second number answer is living room, it's mean बैठक कक्ष. Third number answer is bedroom, it's mean शयन कक्ष. And last four number answer is bathroom. Okay, so students, we have read and solved this exercise A, and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in any answer of this exercise A. Okay, so students, turn your page forward, look at this page number 34. Now we are going to read and solve exercise B. Okay, so listen, look at this exercise B. Students, so exercise B is complete these sentences with the names of the places you can see here. Okay, complete means पूरा करिए. This means in sentences it means वाक्यों. With the names it's mean कि नामों से. Of the places it means स्थानों के. You can see here it's mean कि जो यहाँ आप देख सकते. Okay, you can see here it's mean आप यहाँ देख सकते. Students, exercise B is complete these sentences with the names of the places you can see here. It's mean इन वाक्यों को उन स्थानों के नाम से पूरा कीजिए जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते. Okay, so students, look at this picture and we can see in this picture that here are some places name and here are bus stop, market, park, police station and hospital. Okay, so students, it's a help box and in this help box your helping words are first police station, second is hospital, it's mean अस्पताल, third is bus stop, it's mean bus अड्डा, fourth is market, it's mean बाजार, and last place name is park. Park means बाग. Okay, so student, all these name police station, hospital, it's mean अस्पताल, bus stop, it's mean bus stop या बस अड्डा, market, it's mean बाजार, park, it's mean बाग, ऑल दिस योर प्लेसेस नेम, ये आपके सारे स्थानों के नेम है, जगहों के नाम है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज व्हेन वी आर इल कॉमा वी गो टू दी ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर इल इट्स मीन जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं या हम जब बीमार हो जाते हैं. वी मीन्स हम, गो टू मीन्स जाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, the correct word which can be write down here in this first number blank is hospital, because students when we are ill we go to the hospital. Okay, तो स्टूडेंट्स जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, टेक आउट दिस वर्ड हॉस्पिटल फ्रॉम द गिवन हेल्प बॉक्स एंड राइट डाउन योर हॉस्पिटल इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक टू कंप्लीट अवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस. ओके, राइट डाउन योर हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल इट्स मीन होता है अस्पताल. ओके, तो स्टूडेंट्स व्हेन वी आर इल वी गो टू दी हॉस्पिटल, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं. ओके, स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर sentence. Students, our second number sentence is when we want to buy something, when we want to buy something, comma we go to the blank full stop. Okay, when means जब, we means हम, want means जाते हैं, to buy means खरीदना, something means कुछ. Okay, we means हम, go to means जाते हैं. Okay, so students, when we want to buy something we go to the market. इट्स मीन कि जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं ना तो हम मार्केट जाते, बाजार जाते. ओके, सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट वर्ड इज मार्केट. सो ऑल स्टूडेंट, टेक आउट दिस वर्ड मार्केट फ्रॉम द गिवन हेल्प बॉक्स एंड राइट डाउन हियर मार्केट इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक. ओके, MARKET, मार्केट मीन्स बाजार. ओके, एंड स्टूडेंट, देन योर सेंटेंस बिकम व्हेन वी वांट टू बाय समथिंग वी गो टू द मार्केट. इट्स मीन कि जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं, जब हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हम मार्केट जाते, बाजार जाते. ओके, स्टूडेंट, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर सेंटेंस इज व्हेन समथिंग इज स्टॉलन, कॉमा वी गो टू दी ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, व्हेन मीन्स जब, स्टॉल समथिंग इट्स मीन कुछ. ओके, इट मीन्स है स्टॉलन, इट्स मीन चोरी हो जाता है. वी मीन्स हम, गो टू मीन्स जाते. ओके, तो स्टूडेंट्स, व्हेन समथिंग इज स्टॉलन
वी गो टू दी पुलिस स्टेशन. ओके, इट्स मीन जब कुछ चोरी हो जाता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं. ओके, वैन मीन जब समथिंग, इट्स मीन कुछ इज स्टॉलन, इट्स मीन चोरी हो जाता है. कॉमा इट्स मीन होता है तो. वी मीन्स हम, गो टू मीन्स जाते हैं दी पुलिस स्टेशन. ओके, जब कुछ स्टॉल हो जाते हैं, जब कुछ चोरी हो जाते हैं ना, तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं. ओके, so student Dardunia police station in the third number blank. Okay, POLICE police, STATION station, police station. Okay, student let's see 4 number sentence. Students, so 4 number sentence is when we want to catch a bus, comma we go to the blank full stop. Okay, so students, when we want to catch a bus we go to the bus stop. Okay, so student take out this word bus stop from the given help box and write down here bus stop in this 4 number blank to complete our 4 number sentence. B was bus, STOP stop. Okay, bus stop it's in bus stop या bus अड्डा. Okay, so students when means जब, we means हम, want to means चाहते, catch means पकड़ना, आ means एक, बस means बस, कॉमा मीन्स तो, वी मीन्स हम, गो टू मीन्स जाते हैं, बस स्टॉप इट्स इन बस स्टॉप या बस अड्डा. ओके, तो व्हेन वी वांट टू कैच अ बस वी गो टू द बस स्टॉप. इट्स मीन कि जब हम एक बस पकड़ना चाहते हैं तब हम बस स्टॉप जाते हैं. ओके, और वी कैन से आल्सो दैट जब हमें एक बस पकड़नी होती है तो हम बस स्टॉप पर जाते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट लेट्स सी 5th number sentence which is last sentence of this exercise भी. Students, your 5th number sentence is we play games in the blank full stop. Okay, so students, it's really very simple sentence and we know that we play games in the park. Okay, so students, take out this word park from the given help box and write down here park in this 5th number blank. PRK, park. Park means park. Okay, and since then our sentence become we play games in the park. Okay, तो we means हम, play means खेलते हैं, games means खेल, in the park it's mean बाग में, park means होता है बाग. We plays games in the park, it's mean we play games in the park, it's mean कि हम बाग में खेल खेलते हैं. ओके, we play games in the park, it's mean कि हम बाग में खेल खेलते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी एंड इन दिस एक्सरसाइज बी योर करेक्ट वर्ड्स आर योर फर्स्ट नंबर करेक्ट प्लेस नेम इज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल. सेकंड प्लेस नेम इज मार्केट, इट्स मीन बाजार. थर्ड प्लेस नेम इज पुलिस स्टेशन. ओके, and 4 number place name is bus stop. Okay, it's mean bus stop या bus अड्डा. and last 5th number place name is park, it's mean park. Yeah, so students, we have read and solved this exercise B and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any sentence of this exercise C. Okay, sorry, exercise B. So students, now we are going to read and solve exercise A of this chapter 7 in our Far English language notebook. So let's see. Student, the name of this chapter 7 is Miss Daisy's desk. It's mean कुमारी डेजी की मेज. Okay, डेस्क मीन्स होता है लॉन्ग टेबल, इट्स मीन लंबी मेज. ओके, मिस डेजीज डेस्क है, इट्स मीन कुमारी डेजी की मेज. क्लियर? स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज माय हाउस एंड माय नेबरहुड, इट्स मीन मेरा घर और मेरा पड़ोस. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन सर is related with our topic my house and my neighborhood. Let's see exercise A. Students, exercise A is answer the following questions. It's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Students, first number question is where do we cook? Okay, where means कहाँ. Do we cook? It's mean हम पकाते हैं. Okay, where do we cook? It's mean हम कहाँ पकाते हैं. Students, the meaning of this first number question is that कि हम खाना कहाँ पकाते हैं. Okay, students, we cook in kitchen. Okay, हम खाना किचन में पकाते हैं, रसोई घर में पकाते हैं. Okay, so students, write down here kitchen because your first number answer is kitchen, KITCHEN, kitchen. Okay, kitchen means रसोई घर. Clear? Students, our second number question is when people visit us, comma where do they sit? It's mean when people visit, it's mean कि जब लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं, हमारे विजिट करने आते हैं, कॉमा मीन्स तो, वेयर डू दे सिट, इट्स मीन वे कहाँ बैठते हैं. ओके, तो जब लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो वे कहाँ बैठते हैं. जब हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं ना घूमने के लिए तो वो कहाँ बैठते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल विजिट अस दे सिट इन लिविंग रूम. ओके, तो जब हमारे यहाँ कोई घूमने आता है ना तो वो लिविंग रूम में बैठता है. ओके, इट्स मीन कि जब हमारे कोई घूमने आता है तो वे लिविंग रूम में बैठते हैं, बैठक कक्ष में बैठते हैं. ओके, स्टूडेंट्स, राइट डाउन हियर लिविंग रूम इन द सेकंड नंबर आंसर LIVING लिविंग RMM रूम, लिविंग रूम इट्स मीन बैठक कक्ष. ओके, स्टूडेंट्स, दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज वेयर डू वी स्लीप, इट्स मीन हम कहाँ सोते हैं. स्टूडेंट्स, वी स्लीप इन बेडरूम, हम बेडरूम में सोते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन हियर बेडरूम बिकॉज योर थर्ड नंबर आंसर इज बेडरूम, BED बेड RMM रूम, बेडरूम इट्स मीन साइन कच. क्लियर? स्टूडेंट्स, let's see 4 number question which is last question of this exercise. Students, 4 number question is where do you take a bath. It's mean कि आप स्नान कहाँ करते हैं और we can say also that कि आप नहाते कहाँ हैं. Okay, so students, we take a bath in bathroom. Okay, तो students, हम बाथरूम में नहाते हैं, बाथरूम में स्नान करते हैं. So students, write down here bathroom in this 4 number answer, BATHROOM bathroom, BATHROOM bathroom. Okay, so students, we have read and solved this exercise. And in this exercise, your answers are, your first number answer is kitchen, it's mean rasoi ghar. Second number answer is living room, it's mean बैठक कक्ष. Third number answer is bedroom, it's mean शयन कक्ष. And last 4 number answer is bathroom. Clear? So students, we have read and solved this exercise of this chapter 7 and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any answer of this exercise. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise A and exercise B
Visit page number 33 and 34 in your English language book Cornerstone, and after it sends complete exercise C of this chapter 7 in your fair English language notebook with the best handwriting. It's a today's classwork. Okay, and students, today's homework is that complete exercise C, and I am going to explain this exercise C. Okay, students, exercise C is draw and color a picture of your house and your neighborhood on a white sheet of paper. Okay, display it in the classroom. Okay, it's mean कि पेपर की एक वाइट शीट पर अपनी हाउस का और अपनी नाइबरहुड का, इट्स मीन कि अपनी घर का और अपनी पड़ोस का एक पिक्चर बनाइए, एक चित्र बनाइए और इसे कलर कीजिए. ओके, एंड डिस्प्ले इट इन द क्लासरूम, और इसे डिस्प्ले करना है, उसे प्रदर्शित करना है, दिखाना है अपनी क्लासरूम में. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज योर वर्क इज दैट, आपका वर्क है कि आपको पेपर के एक वाइट शीट पे, ओके, एक वाइट शीट के पेपर पे आपको एक अपने हाउस का और अपनी नाइबरहुड का, ओके, अपने घर का और अपनी पड़ोस का एक पिक्चर बनाना है, उसे कलर करना है. ओके, और स्टूडेंट्स उसे आपको क्लास में डिस्प्ले करना है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन शो योर पिक्चर ऑफ हाउस एंड नाइबरहुड हेयर. ओके, तो आप अपना पिक्चर यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज सी. ओके, आई मीन टू से दैट ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड ए नाइबरहुड ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर. ओके, आपको एक वाइट शीट पर अपने हाउस का और अपनी नाइबरहुड का, इसमें अपने घर का और अपने पड़ोस का एक पिक्चर बनाना है और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे. ओके, अपनी पिक्चर को. सो स्टूडेंट्स, टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज ए विच पेज नंबर 33 एंड एक्सरसाइज बी विच पेज नंबर 34 in your English language book Cornerstone. And after it sends note down, I mean to say complete exercise A, answer the following questions of the chapter say one in your fair English language notebook with the best handwriting and send me over here. And students, the homework is that complete exercise C. Okay, so students, I hope you must have understood your classwork and homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, complete exercise A which on page number 33 and exercise B which on page number 34 in your English language book Cornerstone. And after it sends complete exercise A, answer the following questions of the chapter 7 in your fair English language notebook with the best handwriting and send me over here. Thank you.